जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द स्टोमेटा? स्टोमेटा इज़ द एपिडर्मल ओपनिंग ऑफ द सेल present on the leaf of the various plant. Some into the some plant stomata also present on the stem. So what is the stomata? Stomata require for the transpiration or exchange of the gases and also transpiration of the gases or liquids. So stomata, in this video I am going to discuss what is the stomata in detail, about the type of stomata, how many classes there are, four main classes of the stomata, and with funny tricks. एक बार आप जो मेरे साथ स्टोमेटा पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो स्टोमेटा के एनिसोसाइटिक, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, ये पूरे गंदे गंदे नाम लगते हैं ना आपको, तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम करके देने वाला हूँ। पैरासाइटिक स्टोमेटा क्या होता है, डायसाइटिक स्टोमेटा क्या होता है। हर बार जीपैट में, हर बार कौन से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो आप, स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन आया ही आया है। तो आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये स्टोमेटा का क्वेश्चन छूटता ही नहीं एक बार आप जो वीडियो देखेंगे। तो चलो चलते हैं आपके स्क्रीन के पास। तो स्टोमेटा आर द टाइनिंग ओपनिंग्स और पोर्स। तो क्या है स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनिंग ओपनिंग्स और पोर्स। ये होल है या टाइनी मीन्स छोटे छोटे ओपनिंग है, छोटी छोटी ओपनिंग है या पोर्स है इन द प्लांट टिश्यू। कहाँ पर प्रेजेंट है? प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं रहता। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट टिश्यू। दैट अलाउज फॉर द गैस एक्सचेंज मीन्स स्टोमेटा किसके लिए अलाउ है? गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा आर टिपिकली फाउंड इन द प्लांट लीव्स बट ऑल्सो फाउंड इन द सम प्लांट स्टेम। मीन्स स्टोमेटा प्लांट के लीफ में प्रेजेंट रहता है, बट सम टाइम इन सम केसेस ऑफ द प्लांट स्टोमेटा also present on the stem. Specialized cell known as the guard cell surrounded to the stomata and function to open and close the stomatal pores. तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है, सब्सिडरी सेल होता है और स्टोमा होता है। गार्ड सेल स्टोमा के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और subsidiary cell which surrounded to the guard cell and guard cell surround to the stoma. So please understand what is the guard cell and what is the subsidiary cell, what is the stoma. Depending on the position of the guard cell and subsidiary cells, stoma is classified into four type, and these guard cell are guarding cells means these act as the guard or the security for the stomata, for the opening or closing of the stomata. Please see in this figure what is the open stomata and how seen the closed stomata. In this first figure we able to see stomata are the closed type stomata. Into the second figure we can see the open type of the stomata. In the closed system, in the stomata or guard cell are the completely closed with each other. Into the open stomata, guard cell are the free from each other and there is a seeing stomatal pores are visible into the second system. In this figure we are able to see guard cell, subsidiary cell, stomatal pores. Please see this green or pink, green or yellow colors, these are the guard cells, and please these into the orange color, these are the subsidiary cells, and into the green background or green linings, these are the epidermal cell. Please see, understand what is the guard cell. Guard cell are the yellow in color, green or yellow in color, and orange are the subsidiary cells, epidermal cells, and stomatal pores. Please understand, if you understand this figure, then there is a no difficult टू अंडरस्टैंडिंग और स्टोमेटा समझने के लिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी जब आपको एपिडर्मल सेल, सबसिडरी सेल समझ में। स्टोमेटा के टाइप के बारे में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टोमेटा इज द पैरासाइटिक स्टोमेटा। पैरासाइटिक, प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइप इज द पैरासाइटिक स्टोमेटा।
पैरासाइटिक स्टोमेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूबिसियस स्टोमेटा और पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल आपको याद में रखने का। गार्ड सेल इन दिस फिगर, guard cell are the green in color, and to surrounding that guard cell the gray colored cells are known as the subsidiary cells, and this stomatal pores is seen into the white in color. प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको स्टोमेटा समझ में आएगा। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा से आपको याद में रखने का, पैरेलल सेल्ड मीन्स पैरेलल, सब्सिडरी सेल्स आर द पैरेलल to the guard cells, means subsidiary cells parallel to the guard cells and parallel to the stomata। तो पैरासाइटिक स्टोमेटा में कुछ भी नहीं याद रखने का आपको। पैरासाइटिक स्टोमेटा also called as the rubiceous stomata or parallel celled stomata, and in which subsidiary cell are the parallel to the guard cell, and the examples of the parallel celled stomata are the hypericum, senna and coca। इसी एग्जाम्पल के लिए हमने ट्रिक बनाई कि HSC, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए। HSC, हाइपेरिकम, सेना एंड कोका, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासाइटिक स्टोमेटा। आप जीपैट का कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन आया ही आया है। तो प्लीज़ ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, कंफ्यूज कर देता है। आपको कंफ्यूज होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। पैरासाइटिक स्टोमेटा को पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा कहा जाता है, अल्सो रूबिसियस स्टोमेटा भी कहा जाता है, और उसके एग्जाम्पल है हाइपेरिकम, सेना, कोका। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है HSC। तो आपका अगला स्टोमेटा का टाइप है डाइसाइटिक, अल्सो कॉल्ड एज द कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। तो आपके पहला टाइप था पैरासाइटिक स्टोमेटा, अल्सो कॉल्ड एज द पैरेलल सेल्ड और रूबिसियस स्टोमेटा। उसके एग्जाम्पल थे सेना, हाइपेरिकम एंड कोका। आपको ट्रिक दी थी HSC, एंड इनटू द पैरासाइटिक स्टोमेटा द गार्ड सेल आर द पैरेलल टू द सब्सिडरी सेल्स। तो चलो आपका सेकंड टाइप डाइसाइटिक स्टोमेटा पढ़ लेते हैं। डाइसाइटिक स्टोमेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। इन पैरासाइटिक स्टोमेटा में क्या था, सब्सिडरी सेल आर द पैरेलल टू द गार्ड सेल, बट इन केस ऑफ द डाइसाइटिक स्टोमेटा सब्सिडरी सेल आर द क्रॉस टू द गार्ड सेल्स। मीन्स आप फिगर में देख रहे हैं गार्ड सेल जैसे कि तैसे है, ग्रीन सेल्स आर सीन are the close to each other, but subsidiary cells are cross with the guard cell। please understand, गार्ड सेल से पैरेलल नहीं है, गार्ड सेल से अपोजिट है सब्सिडरी सेल, इसीलिए इस डाइसाइटिक स्टोमेटा को क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी कहा जाता है। और डाइसाइटिक स्टोमेटा के आपके एग्जाम्पल हैं हसाका, पेपरमिंट एंड स्परमिंट। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बहुत अच्छी बनाई है, व्हीपी सिंह। ये जो आपके एक पॉपुलर PM थे ना, तो व्हीपी सिंह के ऊपर हमने एक ट्रिक बनाई है, हसाका, पेपरमिंट एंड स्परमिंट। दीज 3 आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द डाइसाइटिक स्टोमेटा। डाइसाइटिक स्टोमेटा में आपको सिर्फ ये याद में रखने का है कि भाई डाइसाइटिक स्टोमेटा ऑल्सो कॉल्ड एज द कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, इन विच सब्सिडरी सेल एंड गार्ड सेल आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड उसके एग्जाम्पल है हसाका, पेपरमिंट, स्परमिंट। एंड इसके लिए हमने ट्रिक बनाए हैं व्हीपी सिंह। तो प्लीज़ ये आपके 2 एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। पैरासाइटिक स्टोमेटा हो गया, डाइसाइटिक स्टोमेटा हो गया। पैरासाइटिक में सब्सिडरी सेल एंड गार्ड सेल आर द पैरेलल टू ईच अदर, इनटू द डाइसाइटिक स्टोमेटा into the डाइसाइटिक स्टोमेटा the subsidiary cell and the guard cell are the opposite to each other and opposite to the stomata। प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। पैरासाइटिक स्टोमेटा हो गया, डाइसाइटिक स्टोमेटा हो गया। आपका थर्ड टाइप का स्टोमेटा आता है अनोमोसाइटिक स्टोमेटा, also called as the ranunculus स्टोमेटा, और
इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। आपने पैरासाइटिक और डायसाइटिक स्टोमेटा में देखा कि भाई 2 गार्ड सेल है और 2 ही सब्सिडरी सेल है, बट इन केस ऑफ द एनोमोसाइटिक स्टोमेटा देर आर द 6 आर द सब्सिडरी सेल्स, मीन्स 6 और लेस देन 6 और मोर देन 6 कितने भी हो सकते हैं, बट लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एनोमोसाइटिक स्टोमेटा अल्सो कॉल्ड एज द रेनुकुलेसियस स्टोमेटा। तो किसी बंदे को क्या हो जाता है भाई, याद में नहीं रहता कि भाई एनोमोसाइटिक स्टोमेटा को क्या रूबिसियस कहते हैं, क्या कैरियोफाइलेसियस कहते हैं, क्या क्रूसीफेरस कहते हैं, क्या रेनुकुलेसियस कहते हैं, क्या कहे जाते हैं, उसका अदर नेम सिनोनिम यानी क्या है, ये याद में नहीं रहता। तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। इनटू द एनोमोसाइटिक मीन्स एनोमो, ये एनोमो में किसी का नाम आता है, ओम नाम आता है, कि किसी लड़के का नाम होता है ना ओम। तो ओम जो लड़का है ना उसको रानी से प्यार है। तो आपको समझ में आना चाहिए एनोमोसाइटिक स्टोमेटा और रानी, ओम रानी, और एनोमोसाइटिक स्टोमेटा इज कॉल्ड एज द रेनुकुलेसियस स्टोमेटा और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। इरेगुलर मतलब जो स्टोमेटा और गार्ड सेल है, गार्ड सेल और स्टोमेटा कितने भी नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल से कवर हो सकते, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इतने ही सब्सिडरी सेल होगी या वो पैरेलल होगी या क्रॉस होगी, कैसे भी हो सकती है, ये कांस्टेंट नहीं रहता, इसीलिए उसको इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा कहा जाता है। और उसके एग्जांपल है बिच्चू डिजिटैलिस, हेमलॉक लोबेलिया एंड एम्बिलिफेरस फ्रूट। तो डिजिटैलिस के बारे में आपको याद में ही रखने का है। डिजिटैलिस इज कंटेन एनोमोसाइटिक स्टोमेटा which is a cardiotonic drug. Digitalis is the most important, which is used as a cardiotonic drug and contain cardiac glycosides. So इसके एग्जांपल याद में रखो और आपके ट्रिक ओम और रानी, यानी ये ट्रिक याद में रखने के एनोमोसाइटिक स्टोमेटा और रेनुकुलेसियस स्टोमेटा। शायद आप लोगों को पीछे जो 3 स्टोमेटा के टाइप हो गए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं 4th टाइप ऑफ द स्टोमेटा, दैट इज़ द अनिसोसाइटिक स्टोमेटा अल्सो कॉल्ड एज द क्रूसीफेरस स्टोमेटा और अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। तो इसके नाम में ही दिक्कत है, बहुत लड़के को नाम याद करने में ही दिक्कत हो जाती है। तो क्या करें भाई, नाम तो याद में करना ही पड़ता है। किसी एग्ज़ाम में क्रूसीफेरस स्टोमेटा आ गया तो क्या करेंगे हम, एनिसोसाइटिक, आपको एनिसोसाइटिक का क्रूसीफेरस नाम है ये आपको पता नहीं, तो क्या आपका क्वेश्चन छूट जा सकता है। तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। एनिसोसाइटिक स्टोमेटा मीन्स इसमें एक लड़के का नाम आ जाता है, यानी अनीस, किसी लड़के का नाम है अनीस और उसको कृषि करना यानी खेती करना बहुत पसंद है। तो अनीस नाम का बंदा है, इसी को खेती करना बहुत पसंद है। आपका भारत देश कृषि प्रधान देश है ना, तो ये अनीस नाम का बंदा जो है ना उसको कृषि करना यानी खेती करना बहुत पसंद है। तो इससे आप याद में रख सकते हैं कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा अल्सो कॉल्ड एज द क्रूसीफेरस स्टोमेटा एंड अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। व्हाई इज कॉल्ड एज द अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा? इनटू द एनिसोसाइटिक स्टोमेटा guard cell are surrounded by the subsidiary cells, but one subsidiary cell is the too large, means एक जो सब्सिडरी सेल होती है आपको फिगर में दिख रहा है, 2 सब्सिडरी सेल छोटे छोटे हैं लेकिन एक जो सब्सिडरी सेल है बहुत बड़ी दिख रही है, तो इसीलिए उसको एनिसोसाइटिक एंड अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा भी कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल है फिंका अल्कोलाइड एंड ट्रोपेन अल्कोलाइड। शायद आपको इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप इज द पैरासाइटिक स्टोमेटा, इट इज अल्सो कॉल्ड एज द रूबिसियस स्टोमेटा एंड पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। in this there is the guard cell are the parallel to the subsidiary cell and stoma, and examples my trick is HSC, that is Hypericum, Senna and Coca. Second type is the diacytic stomata, also called as the caryophyllaceous stomata, and this also called as the cross-celled stomata. Into the diacytic stomata called as the cross-celled stomata or caryophyllaceous stomata. The trick is whipping
and whipping, the drug name is the Vasaka peppermint and spearmint. Third type of the stomata, it is the also called as the anomocytic stomata और रेनिकुलस स्टोमेटा. ओम और रानी, ये आपको नाम याद में रखने के. ओम रेनिकुलस स्टोमेटा और irregular celled stomata means there is the guard cell are surrounded by irregular number of the subsidiary cell. Please understand, and examples are the Vichu, digitalis, hemlock and umbelliferous fruit. All umbelliferous fruit are come under the anomocytic stomata. Fourth type of the stomata is anisocytic stomata. Anis and cruci means anisocytic stomata or cruciferous stomata are unequal celled stomata in which the guard cell are surrounded by the three subsidiary cells, and from which the one subsidiary cell is the too large, so that is called as the unequal celled stomata. And examples are the vinca alkaloid and tropane alkaloid. तो विंका अल्कोलाइड आपको कौन से है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, जो आपके अल्कोलाइड में आ जाते हैं और एंटी कैंसर यूज़ हो सकते हैं. और ट्रोपेन अल्कोलाइड के बारे में आपको याद में रखने का है, ज़्यादातर ट्रोपेन अल्कोलाइड देने वाले ड्रग सोलानसी फैमिली में आ जाते हैं, जो विटालिमोरिन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. आई होप किसी को भी इस स्टोमेटा के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए. प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है. प्लीज़ ध्यान में रखिए, प्लीज़ इसका थोड़ा रिवीजन कर दीजिए. सो विद दिस थैंक यू, एंड ऑल अबाउट द स्टोमेटा इज़